اور اب ہے تقریری مقابلہ اور آج بڑا اہم مقابلہ ہونے والا ہے. ہمارے پاس 54 کنٹیسٹنٹس تھے. 54 میں سے 15 آگے جا چکے ہیں یعنی کوالیفائی کر چکے ہیں اگلے راؤنڈ کے لیے, اگلے فیز کے لیے, کوارٹر فائنلز کے لیے. اور اب جو وائلڈ کارڈ کا ہم نے کہا تھا کہ پرزور فرمائش پر واپس آ سکتے ہیں, تو ان میں سے 4 کنٹیسٹنٹس آج مقابلہ کریں گے. اور اب ججز پر ڈیپینڈ کرتا ہے 4 میں سے 2 کو نکالتے ہیں یا 1 آگے جائیں گے اور وہ 3 پھر ان کے لیے پھر کوئی چانس نہیں ہوگا. تو آج بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے. 16 ہو جائیں گے نا, 16 ہو جائیں گے یا اگر آپ دو اگر آپ کرتے ہیں 17. وائلڈ کارڈ کے آپشن آج کے بعد بند ہے. جی بند ہے. میں ترتیب آپ کو بتا دیتا ہوں. 16 کینڈیڈیٹ, 16 کے درمیان جو مقابلہ ہوگا اس میں سے 8 کینڈیڈیٹ نکلیں گے. 8 کے درمیان جو مقابلہ ہوگا اس میں سے 4 نکلیں گے اور 4 بولیں گے گرینڈ فنالے میں. اس دن بیت بازی نہیں ہوگی جو 27 رمضان کو ہمارا فائنل ہوگا, تو ہمارے پاس ٹائم مارجن ہوگا ان 4 کو گرینڈ فنالے میں, اس میں جو فرسٹ آئے گا. بالکل ایسی. تو ادریس بھائی ہمارے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور نمرہ ہماری چیف گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں. تیار ہے نمرہ آپ بھی؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. پھر آج کا ہمارا موضوع ہے کامیابی کے لیے پرچی ضروری ہے. تو 1 بائی 1 میں کہوں گا کنٹیسٹنٹس آئیں گے اور اپنی تقریر کریں گے. سب سے پہلے آ رہی ہے آئی ڈی نمبر 4 حوریا نور. حوریا آئیے. یہ ایلیمنیٹ ہو گئی تھی وائلڈ کارڈ کے ذریعے, واپس آئی ہیں. ویلکم بیک حوریا. جی موضوع بتا دیں ان کا. اچھا جی, موضوع ہے کامیابی کے لیے پرچی ضروری ہے. یہ موضوع ہے ہمارا. تو ٹائم لگائیے اور سٹارٹ. تیار ہیں آپ؟ سٹارٹ. صدر علی وقار, مجھے غور سے دیکھیے, پہچانیے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ نے مجھے پہلے بھی دیکھا ہے. جی ہاں جناب والا, میں تو جا چکی تھی لیکن ایک پرچی کے ذریعے واپس آ گئی. صدر علی وقار, یہ وہ پرچی نہیں ہے جو چھپا کر دی جاتی ہے, بلکہ یہ تو وہ پرچی ہے جو عوام نے سرعام پیغامات کے ذریعے بھیجی ہے. علی وقار, آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کامیابی کے لیے پرچی ضروری ہے. پرچی سے مراد وہ نہیں جو امتحان میں جوتوں اور جیبوں سے برآمد ہوتی ہے, وہ بھی نہیں جو میم رخسانہ سر ادریس کو دیتی ہیں, بلکہ اس سے مراد وہ تعلقات اور سفارشات ہیں جو زندگی کے راستے سیدھے کر دیتی ہے. صدر علی وقار, بڑے کہتے تھے کہ محنت کرو, نام کماؤ, کامیابی حاصل کرو, لیکن جب عملی زندگی میں قدم رکھا تو کامیابی کے ساتھ ساتھ ایک اور زینہ شامل ہو گیا. جی وہی پرچی. یہاں میرٹ خاموشی سے رو رہا ہے اور پرچی ہنستے ہنستے اپنی جگہ بنا رہا ہے. صدر علی وقار, عالمی سیاست میں دیکھیں تو عالمی فیصلے, جنگی فیصلے سب ایک فون کال یا پیغام سے بدل جاتے ہیں, جیسے ہمارے ٹھنڈرز کی آگ اگلتی پروازوں کو روکنے کے لیے سپر پاور کی پرچی. جناب والا, پاکستان میں دیکھیے تو سرکاری دفاتر کے لیے پرچی, علاج کے لیے پرچی, سرکاری نوکری کے لیے پرچی, حتیٰ کہ قبرستان میں قبر حاصل کرنے تک کے لیے پرچی. جی وہی بابا قوم کی تصویر والی پرچی. سیاست دانوں کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے 50 روپے والی پرچی. کرکٹ کے میدان میں سسر کی داماد کے لیے پرچی, اور سیاست کے میدان میں سائیں تو سائیں کے بچے بھی سائیں. جناب والا, آپ نے دیواروں پہ محبوب آپ کے قدموں کا اشتہار تو دیکھا ہوگا, لیکن کبھی بیگم آپ کے قدموں کا اشتہار دیکھا نہیں نا, کیونکہ بنگالی بابا بھی شادی شدہ ہوتے ہیں اور انہیں یہ بات پتہ ہے کہ کوئی بھی پرچی یہ کام کر ہی نہیں سکتی. صدر علی وقار, کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ہوسٹ کو دیکھا. ارے وہی جو 1992 کا ورلڈ کپ 2006 میں جتوا رہی تھی. ان کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ٹی وی پر بھی صرف پرچی ہی چلتی ہے. ویسے ہماری ہوسٹ کافی عرصے سے مارننگ شو کرتی ہیں, کوئین آف مارننگ شو کا لقب بھی ملا, لیکن کبھی ڈاکٹر صاحب اٹھ جائے, ڈاکٹر صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والی تڑیاں نہیں لگائی. کیوں نہ دیا پی, صحیح کہا نا. صدر علی وقار, پرچی اگر انصاف کے ساتھ ہو تو وہ رکاوٹ نہیں بلکہ مواقع پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. جیسے ایک استاد اپنے قابل شاگرد کی سفارش کرے تو وہ اس کی صلاحیت کی گواہی ہوگی. اصل مسئلہ پرچی نہیں, غلط پرچی ہے. پرچی دروازہ ضرور کھول سکتی ہے, مگر دروازے کے اندر کھڑے رہنے کے لیے قابلیت اور محنت ضروری ہے. بہت شکریہ. کیا بات ہے بھائی, تالیاں ہو جائے. بہت ہی امیزنگ کنٹینٹ. کیا بات ہے بیٹا. حوریا, سحری پہ کیا کھایا تھا؟ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. ہاں جی, تو یہ تالیاں بجانے کا مقصد یہ نہیں, دوسرے اس سے بھی اچھے ہو سکتے ہیں. کسی کو نہیں چھوڑا, میں کہتی ہوں کوئی نہیں بچا, حوریا سے کوئی نہیں بچا. اچھا, محمد وحید زیدی. ماشاءاللہ, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ. آئی ڈی نمبر 7. اور آج بھی بڑا تگڑا ہے بھائی, میں نے دیکھا ہے نا. زبردست. چلے جی, تو لگائیں, ٹائمر لگائیں. تیار ہے نا؟ آل دا بیسٹ. سٹارٹ. علی وقار, لگتی ہے کل کی بات, مجھے ایک امتحان میں ہوئی مات. مجھ سے کہنے لگا اسلم مرچی, کیا نہیں تھی تیرے پاس کوئی پرچی؟ میں نے کہا بھائی میں محنت پہ یقین رکھتا ہوں. بولا بڑی پرانی تیری تھیوری ہے, کیونکہ اب تو کامیابی کے لیے پرچی ضروری ہے.
वैसे आली वकार कुछ पर्चियां बड़ी सियासी होती हैं और कुछ हमारी असेंबली की मोरूसी बासी होती हैं जो मेहनत करते हैं, जल्द निकाले जाते हैं और पर्ची वाले कुर्सी पे बैठ जाते हैं। वैसे जोएब भाई, मेरी गली में रहते हैं एक थानेदार, मैंने उनसे किया एक सवाल, अंकल आपने उन साहब को क्यों लगाई झड़की? कहने लगे दिखा रहा था मुझे पर्ची, वो भी खाली। चाहता था अगर मुकदमे में कामयाबी तो दिखाता मुझे पर्ची में लाल और नीली शादाबी। पर्ची से पर्चा हो गया, अब तो डबल खर्चा हो गया। जैसे नादिया आप ही, पर्चे से याद आया कि जुम्मे को था मेरे अंग्रेजी अदब का पर्चा और सुना है अंग्रेजों में पर्चियां जरा कम ही चलती हैं। मैंने अपने दोस्त अरकम से किया सवाल, हाँ भाई क्या है हाल? बोला एकदम कमाल, सीधी जेब में है नावल, उल्टी जेब में है नज्म, आज करके आया है तेरा भाई कामयाब होने का अज़्म। अरकम को तो मिल गई कामयाबी क्योंकि उसके पास थी पर्ची वाली चाबी, लेकिन मेरा क्या हुआ? नतीजा आते ही अब्बा ने की ऐसी अंग्रेजी कि मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्यों ना पर्चियां फिर किसी पर्चे में चला कर देखूं। खैर अली वकार, छोड़िए आज का फसाना, याद करते हैं जरा गुजरा जमाना। मैंने अपने अब्बा से किया एक सवाल, अब्बा हम तो जनरेशन जी से हैं, यानी जेन जी, लेकिन अब्बा आप किस जनरेशन से हैं? कहने लगे जनरेशन पर्ची। मैंने कहा ये जनरेशन पर्ची क्या होती है? कहने लगे बेटा हम 90 की दहाई में पैदा हुए हैं। मैंने कहा ये 90 में क्या खासियत है? कहने लगे बेटा छोटी ईद पर आता था ईदी देने वाला मेहमान और बड़ी ईद पर आता था खाल की पर्ची देने वाला भाई जान। खैर अली वकार, छोड़िए ये सारी बातें, सुनाता हूं आपको एक और फसाना। मेरे घर में अब्बू के दोस्तों का जोहराना, अम्मी को पकाना थी कीमा मिर्ची, फौरन से मेरे हाथ में थमा दी सौदे की पर्ची। मुझसे बोली बेटा कीमे के साथ मसाला भी निकलवाना। मैं पहुंचा कसाई की दुकान, जहां था बिजली का बहरान, हर तरफ था अंधेरा। उसने अपनी मशीन का तार मोटर से जोड़ा। मैंने कहा भाई कीमे के साथ जरा मसाला भी निकालना। उसने पूछा मसाला कहाँ है? मैंने कहा पर्ची में। उसने पर्ची ली और मशीन में डाली, मेरी चीख निकल गई क्योंकि कीमे के साथ साथ पर्ची भी पिस गई। क्या कह रहे हो यार, इधर इधर जाते, क्या बेहतरीन तुमने भी यार। ये होता है तकरीरी मुकाबला, कमाल है। नम्रा आर्टिस्ट है ना, नॉट इवन वन फंबल। यार ये स्क्रिप्ट ऐसे लिखे हुए बहुत ही अमेजिंग। अच्छा जी, अब हंजला आईडी नंबर 12 जी। हंजला आ जाए। इसमें आप चूज कैसे करेंगे त्रिस भाई, बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा जी, कामयाबी के लिए पर्ची जरूरी है, कितना? ऑल द बेस्ट बेटा। टाइम लगाएं जी, स्टार्ट। सदर अली वकार, आज का मौजू हम पाकिस्तानी के लिए दिल की आवाज है, क्योंकि ये पर्ची की बात है। जनाबे वाला, जब बात पर्ची की हो और सियासतदानों की ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये नाइंसाफी हो जाएगी। ये वाहिद तबका है जिनकी मुमासलत मुकर्रिरीन से है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग तकरीर पर्ची देख कर करते हैं। कि जनाबे वाला, जब बात पर्ची की हो और सियासतदानों की ना हो, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी क्योंकि ये किसी मुमासलत है जो मुकर्रिरीन से मिलती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग पर्ची देख कर तकरीर करते हैं। जनाबे वाला, कल रात मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि कामयाबी की कितनी सीढ़ियां हैं, तो मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा कि बेटा 3। पहली सीढ़ी मेहनत करना, दूसरी सीढ़ी कुर्बानी, और फिर वो खामोश हो गए। तो फिर मैंने कहा कि तीसरी भी बता दे, तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे पास नहीं क्योंकि वो पर्ची है। सदर अली वकार, जब बात पर्ची की हो। बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। दोबारा से वहीं से आ जाओ, कोई बात नहीं अभी है। थोड़ा आगे चले जाओ, थोड़ा उसको स्किप करके। सदर अली वकार, जब बात पर्ची की हो और सियासतदानों की ना हो, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी क्योंकि ये पर्ची की बात है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, होता रहता है। इधर तो कोई क्या बोल रहा है, शुक्रिया कहते ऐसे ही चले आओगे। सही, ऐसे होता रहता है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब आईडी नंबर 44 राहीन खान, आइए। हाँ जी, कैसे हैं राहीन? तैयार हैं? बिल्कुल सही, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। रेडी? ऑल द बेस्ट। चले स्टार्ट। पहचाना? नहीं पहचाना? अल्लाह ने इज्जत ही बड़ी दी है। जनाब वाला, मैं आपको अपने बारे में खुद ही बता दी हूँ। राहीन है मेरा असल नाम, हंसी मजाक है मेरा काम। मैं हूँ राहीन, दिल के हसीन पर पढ़ाई में जरा कमतर। सदर अली वकार, मैं आपको अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती हूँ। 10वीं का इम्तिहान में अपनी जान पर खेल कर देने गई क्योंकि मेरी जेब में पर्चियों की लाइब्रेरी बनी थी।
कमरे इम्तिहान में पहुंचते ही मेरी नजर एक दीवार पर पड़ी जहाँ लिखा हुआ था कि एक कैमरे की आंख आपको देख रही है। सदर अली वकार मैं देख ही रही थी और पर्ची निकाल रही थी कि अचानक दिल टूटे, मां टूटे, सांस टूटे, जज्बात टूटे, ख्वाब टूटे कि मेरी नजरों के सामने एक दर्दनाक, खतरनाक, खौफनाक चेहरा सामने आता है। मुझे कहता है कि ये पर्ची क्यों लाई? मैंने भी कह दिया एहतियाती तदाबीर है, कामयाबी के लिए पर्ची जरूरी है। सदर अली वकार समाजी हाल पे जरा नजर डालिए। किसी को अपनी बेरोजगारी की हाल सुनाती तो जवाब में मुझे ये कहते हैं कि डिग्री अपनी तरफ और पर्ची अपनी तरफ। अगर कोई काबिलियत ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो एक कॉल पर कह दे कि ये बंदा मेरा जानने वाला है, फिर तो कामयाबी ऐसे कदम चूमती है कि जो मैच में फेल होते थे वो भी डॉलर्स में कमाने लग जाते हैं। सदर अली वकार कुछ लोग स्टेज पर आते हैं और अपनी जेब से पर्ची ऐसे निकालते हैं और खोलकर कहते हैं मेरे अजीज हमवतनों हम आपको खुशहाल बनाएंगे। लेकिन सदर अली वकार इलेक्शन खत्म होने के बाद वो पर्ची भी गुम हो जाती है और वो वादे भी गुम हो जाते हैं। सदर अली वकार अब तो ये हाल हो गया कि कामयाबी के लिए पर्ची वाकई इतनी जरूरी हो गई है कि नादरा में लाइन कम करानी है तो पर्ची जरूरी, सरकारी नौकरी चाहिए तो पर्ची जरूरी, गवर्नमेंट अस्पताल के लिए तो पर्ची जरूरी। हाँ तो ये है कि अब कोई भी काम पर्ची के बगैर होता ही नहीं है। सदर अली वकार अगर आपके पसंदीदा औरत या मर्द की अम्मी नहीं मान रहे तो परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ चटमंगनी पढ़ बिया, हर मसले का है सिर्फ 5 दिनों में। ये सब मिलता है हमें इन दीवारों पर लिखा हुआ, तो फिर लगा दे किसी कामिल बाबा को पर्ची। खैर सदर अली वकार अलमारी में पड़ी रह गई किताबें क्योंकि पर्ची जरूरी है। अब तो कामयाबी के लिए सिर्फ पर्ची जरूरी है। कमरे इम्तिहान में पहुंचते ही सर पूछते कि तैयारी कैसी है, मैं भी बड़े फखर से कह देती हूँ कम है अकल मगर पर्ची जरूरी है। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। क्या बात है, 30 सेकेंड्स पहले खत्म किया। और ये हमारे 4 कंटेस्टेंट्स। नम्रा आप बताएं कैसा लगा आपको ये? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और टॉपिक तो ऐसा था मुझे लग रहा था कि शायद मेरे ऊपर ही टॉपिक रख लिया है, क्योंकि पर्चियों से हम भी बड़ा जूझते हुए आए हैं इस फील्ड तक। मैंने भी बड़ा टाइम लगाया है, बड़ी मेहनत की है, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस से यही कहना चाहूंगी कि हर मकाम पे पर्ची जरूरी नहीं। पर्ची जरूरी। अगर टैलेंट ना हो तो बड़ी बड़ी पर्चियां हमने फेल होती देखी हैं। लेकिन वो कौन सी पर्ची है जो डाले कुछ और निकलती कुछ और है? बस बहुत सारी ऐसी पर्चियां, वोट की पर्ची है वो। लेकिन वाकई अगर आप टैलेंटेड हैं और अगर आप अल्लाह को याद रखते हैं, अल्लाह से करीब हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, तो इंशाल्लाह मेहनत कभी रहेगा नहीं जाती। आप फरमाइए हिंदी बीन चाहे सारे बच्चे जितने भी हैं आ जाए, चारों आ जाइए, आ जाइए। बच्चों ने आज तो बड़ा इम्प्रेस किया है भाई, वेरी नाइस, वेरी इम्प्रेस। नंबर लिख लूं, बाद में भूल जाऊंगी। और यूसफी ने कहा है कि प्रोफेसर हमेशा प्रोफेसर रहता है चाहे बाद में उसे अकल ही क्यों ना आ जाए। ये मुश्ताक अहमद यूसफी का मैंने इसलिए सुनाया कि जो बच्चे मज़ाहिया तकरीर हुई और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि आज नादिया साहिबा बहुत खुश थी। और ये जो टॉपिक था ये भी यही उस दिन जुहैब ने पर्ची पर निकला और हमने बच्चों को दिया और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बेटा देखो मज़ाहिया तकरीर करना ज्यादा मुश्किल है, वो सुनने वाले को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो मवाद इकट्ठा कर रहा होता है मुकर्रिर उसको पता है कि उसकी जान पे किस तरह बनी होती है। तो मज़ाहिया का मतलब हरगिज नहीं है कि आप जोकर बन के हंसाएं या इस तरह का मजाक करें, बल्कि इसकी एक पंच लाइन होती है हमेशा, और उस पंच लाइन के अंदर सब कुछ जो है वो तमाम तंज और मीनिंग्स जो है वो छुपी होती है, जो हमें आज नजर आई। बिल्कुल इदरीस भाई, आज तो वाकई आपने मुश्किल में डाल दिया। बिल्कुल आज मैं भी लड़ जाऊंगा। अगर मेरी तवक्कुआत के मुताबिक ना हुआ मैं भी लड़ जाऊंगा आपसे। मैं कहना डिसअपॉइंट मत कीजिएगा कि मुकर्रिर बहुत अच्छे और सिर्फ एक फंबल की वजह से कुछ मार्क्स कम होते हैं, तो हमारा तो जी चाहता है कि चारों को ही आगे ले जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। रिजल्ट क्या करें? आज के विनर्स के नाम मैं बता रहा हूँ, आगे कर देंगे। जो पहले 2 को आगे करते हैं आप, फिर उसके बाद 2 में से 1 आगे। जी मैं 2 नाम आपको बता रहा हूँ जो सिलेक्टेड है। जो तीसरा और चौथा, जो तीसरी पोजीशन जिसकी होगी, वो अगर आगे स्लॉट बनता है तो उसको मौका मिलेगा, नाराज ना होइएगा। अगर आगे स्लॉट नहीं बना तो वो तीसरा कैंडिडेट नहीं आएगा। लेकिन 2 कैंडिडेट, यानी आप 2 आज आगे जाएंगे, ये तो कंफर्म हो गई बात। ठीक है, 2 आगे जा रहे हो और एक ऑप्शनल में रख रहा हूँ। सही है, तो 1 बाय 1 स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। जो एक पहले एक नाम लेंगे वो आगे आ जाएंगे। सबसे ज्यादा नंबर जिसके हैं उसका नाम सबसे पहले मैं पुकार देता हूँ, हुरिया नूर। हुरिया नूर आगे जा रही है, बेहतरीन, क्या बात है। उसके बाद इनका 60 में से 38 मार्क्स इनके हैं। 37 मार्क्स जिस कैंडिडेट के हैं उनका नाम है वहाज जैदी। वहाज जैदी, बिल्कुल सही। यानी हमारा झगड़ा नहीं हुआ आज, वरना होने वाला था। विद 33 नंबर्स हमारी राहीन
रहीन या राहीन खान आपका नाम है, आप आगे आ जाइए। आपका नाम ऑप्शनल हमने रखा है, अगर कैंडिडेट स्लॉट खाली होता है तो आप एडजस्ट होंगे, वरना आप आज की मतलब आज के विनर आप हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो ये दोनों हैं, जल्दी से मुझे क्या तासुरात हैं, कैसा फील कर रही हैं और अच्छा फील कर रही हैं? तो ये सुकून ब्रांड है जनाब अपनी लाइफ में, अगर आप हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो सुकून को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है, बहुत मजा आया, बिल्कुल सही है। तो ये सब कुछ आएगा सारे बच्चों को, एक आपके लिए, इसको कहना चाहिए आज था पटाखा तकरीरी मुकाबला, एक आपके लिए, एक आपके लिए, और आप भी आगे आ जाएं, आगे आ जाएं अभी। ये इस कंपटीशन में आप हारे हैं भाई, ऐसा थोड़ी है कि ये आपके लिए। और एक नम्रा को दे, नादिया हमारी गेस्ट। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। तो अब हो गया है सिचुएशन, ये हो गई कि 15 और वो और 16 17 17 हमारे पास आ चुके हैं अभी कंटेस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही है ना जी। इस्लामाबाद का रुख करना है हमने जल्दी से। शिराज हमारे साथ है। सारी बिल्कुल सही, मैं अभी तक उसी में हूँ जरा तकरीरी मुकाबले में। बेस्ट जब से शुरू हुआ है मुकाबला आज बेहतरीन बेस्ट था परफॉर्मेंस। जी, तो इस्लामाबाद से शिराज ने ज्वाइन किया है, क्या इफ्तारी की तैयारियां हो रही हैं शिराज से जानते हैं ना भाई। शिराज कहाँ पर मौजूद हैं आप? देखिए, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी अफ्तारी की तैयारियाँ जो है वो जारी है। शहरी यहाँ पर दूर दूर से अफ्तारी के जो सामान है वो खरीदने के लिए आते हैं, और यहाँ पर जो मशहूर है वो है अफ्तारी प्लेटर। इस प्लेटर में मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें जी रोल है, समोसा है, इसके साथ साथ मजे मजे के पकोड़े हैं। पकोड़ों के साथ साथ यहाँ पर जो है ये चाट भी जो है वो इस प्लेटर में जी यहाँ पर। और ये कितने का है प्लेटर? साथ कुछ मीठा भी, ये 300 रुपए का है, और साथ ही साथ कुछ मीठा हो जाए तो उसके लिए गुलाब जामुन भी इस प्लेटर में रखा गया है। साथ ही साथ खजूर भी है, और यहाँ की जो मशहूर चटनी है वो भी इस प्लेटर में शामिल है। तो ये प्लेटर यहाँ पर लोग जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से खींचे चले आते हैं। 300 रुपए का तो नोट यहाँ पर खरीदने के लिए सब कुछ है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताऊं, आपको साइंस की तहकीक से पता चला है जैसे कोई भी दो इंसान उनके सेम फिंगरप्रिंट्स नहीं होंगे, डीएनए एक जैसा नहीं होगा, वैसे दुनिया में कोई भी दो समोसे नहीं, पकौड़े एक जैसे नहीं होते। नहीं, ये क्या बात कर रही आपने, बनावट के हिसाब से? हाँ, कोई भी दुनिया में दो समोसे फिर कह रही हूँ, दुनिया में कोई दो पकौड़े एक जैसे नहीं हो सकते जैसे दो लोगों के डीएनए और थंबप्रिंट्स जो है नहीं। तो करना क्या है, टेस्ट करना है, मुंह में जाएगा एक ही जैसा। मजे की बात है, मजे की बात है, बात कितनी इंटरेस्टिंग वाकई आपने है, कोई दो पकौड़े एक जैसे नहीं हो सकते। नादिया बात कर रही है स्ट्रक्चर की, तो वाकई स्ट्रक्चर की बात कर रही है, वाकई ऐसा ही पकोड़ा किसी और एंगल में बनाया गया है, ये पकोड़ा जो है ये किसी और एंगल में है, जबकि ये पकोड़ा किसी और एंगल में यहाँ पर तैयार किया गया है। तो नादिया की बात बिल्कुल ठीक है, और इनका कोई दुनिया में कोई बहन भाई नहीं है। बस कढ़ाई में जाने के बाद ये पकौड़ा जाने पकौड़े की मर्जी के वो कैसे वो चाहता है अपनी। चैलेंज में देखती हूँ कि एक जैसा दो पकौड़े बना। बहुत शुक्रिया शिराज, आपने हमें इस्लामाबाद से ये दिखाए सारे। 300 रुपए में इतना अच्छा प्लेटर, बेहतरीन, और क्या सारी अफ्तारी आपकी हो जाए, पेट्रोल से भी अच्छा। बिल्कुल।